Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So we are starting the class with writing section. Then we will do speaking, reading, and listening as per the flow. So first of all, we were recording this writing. This writing is a very special writing again. It's not a difficult one, but again, this letter will teach us a lot of things about data selection and other things. So first of all, always when you get your exam, you have to read the letter from the end. आपको हमेशा एंड से शुरू करना है. You are the nurse looking after Gemma Brown in the young adult mental health ward at Robina Private Hospital. So you are a nurse at adult mental health ward at Robina Private Hospital. Using then to write a referral letter to the social worker in charge of the mental health ward. So basically this in charge does not mean that social worker is the in charge. It means in charge means at present. So the social worker who is in charge of mental health ward, so you have to write a letter. So basically आपको अपने ही mental health ward के अपने ही hospital के social worker को letter लिखना है. Requesting assessment of Gemma's situation. So whatever the patient name is Gemma Brown, तो Gemma की situation के बारे में बताना है and help with the living arrangements after discharge. So this is the main topic. तो आपको क्या करना है, गेमा की सिचुएशन को बताना है सोशल वर्कर को और उसको बताना है कि इसके लिए लिविंग अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि इसका मतलब जो हम सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर देखने हैं कि गेमा की सिचुएशन क्या है, कि व्हाट इज द सिचुएशन, एंड सेकंड पॉइंट दैट वी हैव टू फिगर आउट अपार्ट फ्रॉम द सिचुएशन इज लिविंग कंडीशंस. तो लिविंग अरेंजमेंट्स क्यों चाहिए उसको, ऐसा क्या है कि जहां पे वो रह रही है क्या वहां पे हैप्पी नहीं है. तो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू फिगर आउट व्हेन इट कम्स टू टुडेज राइटिंग एंड वी आर राइटिंग टू द सोशल वर्कर. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, एक तो पर्पस यहाँ पे दिया होता है, एक तो पर्पस यही हो गया कि रिक्वेस्टिंग असेसमेंट एंड हेल्प विद लिविंग अरेंजमेंट्स. उसके अलावा जो पर्पस होता है वो डिस्चार्ज प्लान होता है. आपको हमेशा अपना पेपर लास्ट से शुरू करना है. यू हैव टू स्टार्ट योर पेपर ऑलवेज फ्रॉम द एंड. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टू whom you are writing the letter. So we are writing the letter to social worker. This is the first thing. Then second is the purpose, and purpose would be told either over here, like in this particular letter the purpose has been told over here, requesting assessment of Gemma's situation. And apart from this there is another purpose that comes in the discharge plan. Sorry, there is another purpose that is living arrangement, which we have already written. So I will write it again. So Gemma's situation and living arrangement, these are the two things. अगेन सबसे पहले ये जानना है किसको लेटर लिख रहे हो, सोशल वर्कर को, फिर पर्पस को समझना है. पर्पस एक तो नीचे दिया होता है और एक डिस्चार्ज प्लान जो होता है वो भी पर्पस ऑफ द लेटर होता है. तो देखते हैं रेस्ट ऑफ द पर्पस क्या है. सो टू पर्पसेस वी ऑलरेडी नो, आई विल अगेन मेंशन इट ओवर हियर एंड देखते हैं इसके अलावा अदर पर्पस. सोशल वर्कर रेफरल, एकोमोडेशन अरेंजमेंट्स आफ्टर डिस्चार्ज सुटेबल फॉर अ बेबी. ओके, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट. So family support is another point that social worker has to do. So social worker has to educate Gemma about the importance of family support with pregnancy and after labor. So that अब ये letter काफी हद तक मुझे समझ आ गया है. Now I can understand this letter that basically she must be a pregnant lady. This Gemma Brown must be a pregnant lady. And she's in the mental health ward, obviously means she will be having some mental problems. She would be having some psychological problems. Then apart from this, she's not talking to her family. That is why they are telling the importance of family support. So we select the data according to discharge plan. पूरा लेटर डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से ही चलता है. द होल लेटर इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्चार्ज प्लान. तो डिस्चार्ज प्लान में अगर फैमिली सपोर्ट बता रहा है तो मुझे सोशल हिस्ट्री में ये जरूर बताना है कि फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं है, या है तो कितनी है. और दूसरी चीज हमें इससे ये पता लगी इससे कि वो प्रेग्नेंट है. तभी तो हमें पहले पॉइंट दिया था लिविंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग विच इज सुटेबल टू बेबी. अगर बेबी पहले, या तो बेबी पहले भी हो सकता था, लेकिन जब यहाँ पे प्रेगनेंसी का पॉइंट दे दिया इसका मतलब वो भी प्रेग्नेंट है. असिस्टिंग हर इन मैनेजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन. तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी सोशल हिस्ट्री से उठाना है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है. तो यानी सोशल वर्कर को ये जो लेटर लिखना है आज का, ये इन सब सिचुएशन को देख के लिखना है. सोशल वर्कर को आज ये सब कुछ देखना है कि फैमिली सिचुएशन क्या है और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है. देन दे हैव टू असेस लिविंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए बेबी के लिए. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, रेफरल टू कम्युनिटी सर्विसेज फॉर सिंगल मदर्स एंड कम्युनिटी सर्विसेज. तो मे बी शी लिव्स अलोन, तो उसको अब कम्युनिटी सोशल सर्विस चाहिए सिंगल मदर्स एंड कम्युनिटी सर्विसेज की. दैट मीन्स शी नीड्स सम सपोर्ट.
तो अगर सोशल हिस्ट्री में एलोन वाला पॉइंट दिया तो वो भी लेंगे। जीपी की अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइज टू चेक प्रेगनेंसी एंड हेल्थ स्टेटस, तो बस और सोशल वर्कर को कह देंगे ऑल्सो कीप अ चेक ऑन जीपीज अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको लेटर को ना थोड़ा उल्टा शुरू कर रहा हूँ आज के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सोशल हिस्ट्री को देखो, और सॉरी डिस्चार्ज प्लान को देखो और पर्पस को लिखना सीखो। तो पर्पस को एक तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर मुझे पर्पस लिखना हो तो मुझे अभी तक जो पर्पस मिला है, अगर मुझे सिर्फ इतना, सिर्फ मैं लेटर को लास्ट पेज को देख के पर्पस लिख सकता हूँ। तो देख के देखते हैं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग MS Brown, Mrs. Brown, who is pregnant and does not have a good living, does not have a good accommodation। तो ये दो बातें तो मुझे समझ आ रही हैं। फर्दर अगर मुझे सिर्फ यहीं से देख के लिखना है, फर्दर शी नीड्स एजुकेशन रिगार्डिंग फैमिली सपोर्ट during pregnancy, if I have to cover the main point, during pregnancy and financial things। तो मेरी लाइन क्या बन रही है मैं देखता हूँ। This letter is being written regarding Mrs. Brown, who is pregnant and does not have good accommodation. Further, she needs education regarding family support during pregnancy and financial things। बस अब तो बन गया। Therefore, she is being referred to you। So I can write again. Today I was in phase 11 Mohali, so we discussed a bit of this letter। तब मैंने कुछ और बताया था पर्पस, मतलब पर्पस हमेशा यही था पर लिखने का तरीका कुछ और बताया था। अब मैं लिख रहा हूं तो मेरा लिखने का तरीका कुछ और है। सो इट डज नॉट मीन कि कोई एक तरीका ही ठीक है, हर तरीका ठीक है। हमें तो पर्पस बताना है कि हम सोशल वर्कर को लेटर लिख रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पर्पस बता दिया कि प्रेग्नेंट है, गुड एकोमोडेशन नहीं है, फर्दर उसको एजुकेशन भी चाहिए, इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। बस अगर और लिखना है, सो देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू for supporting her with yeah, therefore she is being referred to you for assistance and to find an accommodation which is suitable for baby। अगेन ये भी मेरी मर्जी है, अगेन ये मैं लास्ट में भी लिख सकता हूँ। तो वट एवर आई फील लाइक, अगर ये मैंने 4 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख दिए या अगर मैं यहीं पे खत्म कर देता देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। मतलब हमारा पर्पस क्लियर है कि सोशल वर्कर को लेटर लिख रहे हैं कि एजुकेशन दे दो, और वो प्रेग्नेंट है, एकोमोडेशन नहीं है, तो हम रेफर कर रहे हैं आपके पास। अगर फिर लिखना है रेफर टू यू, देयरफॉर शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर असिस्टेंस एंड टू फाइंड एन एकोमोडेशन विच इज सुटेबल फॉर बेबी। तो ये एक और तरीका हो गया। So first paragraph is already just from here, from discharge pen. Now looking at the last paragraph, how to write the last paragraph. So I will also like to teach you here how to write the last paragraph। So last paragraph, सबसे पहला point accommodation। So always start the discharge letter last paragraph with this। It would be greatly appreciated। Last paragraph और first paragraph दोनों ही purpose होते हैं। So the last paragraph and the first paragraph both are of purpose, बट लेकिन इसमें पर्पस ज्यादा क्लियर हो जाता है। इट वुड बी ग्रेटली, इसमें एलोबरेटिव वे में होता है। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज एन accommodation after discharge which is more suitable for baby। बेबी के लिए बेटर हो, सुटेबल हो। सिंपल, देखो कुछ भी नहीं है। along with this एक छोटा सा ये लिखो फुल स्टॉप लगा के, along with this discuss the importance of family support। अब देखो पैसिव कैसे बनाते हैं। this is this is this is object।
इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट विद प्रेगनेंसी एंड आफ्टर, एंड दिस इज वर्ब डिस्कस. सो हमें करना क्या है, पूरा लाइन सेम. Along with this, the importance of family support with pregnancy and after labor, ये पैसिव वॉइस बन गया. बस आप वर्ब को पीछे लेके आए, शुड बी डिस्कस्ड, आपने पैसिव वॉइस बना दिया. देखो कितनी आसानी से बन गया. इसका मतलब क्या है, मैं सोशल वर्कर को कह रहा हूँ आपको ग्रेटली अप्रिशिएट किया जाएगा अगर आप ये कर सकते हो तो. फिर मैंने कहा इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस फैमिली शुड बी डिस्कस्ड. बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, मतलब मैं सोशल वर्कर को कह रहा हूं आपके द्वारा डिस्कस की जानी चाहिए. सिंपल. फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, इसको आराम से लिख दो काइंडली लगा के. काइंडली असिस्ट हर इन मैनेजिंग हर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट. सेम लाइन, इनके साथ मैनेजिंग, बाकी सेम लाइन. दिस इज हाउ सिंपल इट इज. रेफरल टू द कम्युनिटी सर्विस. रेफरल इज रिक्वायर्ड, रेफरल चाहिए, रेफरल इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिटी सोशल सर्विसेज फॉर मदर सिंगल पेंशन. सिर्फ देखो ओईटी आपसे क्या कह रहा है, सिर्फ ये लगाना है, इज रिक्वायर्ड, शुड बी डिस्कस्ड, काइंडली. दीज आर द ओनली वर्ड्स मैंने जो लगाए हैं. अलोंग विद दिस, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड. बाकी सब दिया हुआ है, यही तो ओईटी की खास बात है. जीपी रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइज्ड टू चेक प्रेगनेंसी. प्लीज नोट, जीपी GPs regular appointments need to be organized to check for this. तो मैंने एक पैसिव वॉइस यूज किया शुड बी की जगह नीड टू बी. तो अगेन अगर मैं इन वर्ड्स को कट करूं या कॉपी करके अलग करूं तो आपको ये जान के हैरानगी होगी कि हम ओईटी में कितना लिखते हैं. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएट इफ यू कुड, ये मैंने अपने आप लिखा है, इसको कट कर देता हूँ. सिर्फ मैं ये लिखता हूँ कट. इसके अलावा मैंने क्या लिखा है, अलोंग विद दिस, इसको कट कर देता हूँ. मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको ओईटी में हमें लिखना क्या होता है. शुड बी डिस्कस्ड पैसिव वॉइस, कट, शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म. उसके बाद काइंडली, कट. मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी सब तो आपको दिया है. इसके अलावा जीपीज अपॉइंटमेंट्स नीड टू बी के साथ थर्ड फॉर्म, कट. सो अगर आप ध्यान से देखोगे इस बात को तो हम सिर्फ ये वर्ड्स लिख रहे हैं ओईटी में, दैट्स इट. और बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी है क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 3 बार 4 बार 5 बार सुनना, आपको कभी डिस्चार्ज लेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो मतलब बेसिकली आप लिख के रहे हो, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, अलोंग विद दिस, शुड बी डिस्कस्ड, काइंडली डू दिस, नीड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म. इसके अलावा बाकी सब डाटा आपको दे रखा है. यकीन नहीं आता तो हम वर्ड मैचिंग करके देख लेते हैं. अरेंज एन एकोमोडेशन आफ्टर डिस्चार्ज विच इज सुटेबल फॉर द बेबी दे रखा है. इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट शुड बी डिस्कस्ड दे रखा है. काइंडली असिस्टर दे रखा है. रेफरल इज रिक्वायर्ड, एक वर्ड डाला इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिटी सर्विस दे रखा है. बाकी सब कुछ जीपीज रेगुलर अपॉइंटमेंट नीड टू बी ऑर्गेनाइज, ये सब भी दे रखा है. मतलब आप सच में अगर देखा जाए तो ओईटी के लास्ट पैराग्राफ में जिस ओईटी को लोग मुश्किल कहना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं उसको मुश्किल नहीं कहता, क्योंकि बस यही तो लिखना है आपको. अब इसको कैसे भी याद कर लो यार, कर लो इतना सा याद, आपकी लाइफ बन सकती है इतना छोटा सा याद करने से. इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर विद दीज स्मॉल वर्ड्स. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, along with this should be discussed, kindly assist her this, referral is required या referral should be made, ऐसे लिख दो, referral should be made to the community nurse या kindly refer the patient to community nurse, kindly support her for the referral to community, कुछ भी लिख दो. अगर नहीं लिखो एक पॉइंट आपको, और ओईटी की सबसे अच्छी बात, एक पॉइंट आपको तंग कर रहा है, ये पॉइंट तंग कर रहा है, इसको मत लिखो, चलो कैंसिल कर देते हैं. बस आपको नहीं समझ आ रहा मत लिखो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता.
नहीं तो सिंपल लिख दो कि अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी सिंपल लिख सकते हैं, शी नीड्स रेफरल, बस बाकी सेम लाइन, शी नीड्स रेफरल टू कम्युनिटी, उसको चाहिए तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट बता दी, शी नीड्स रेफरल टू कम्युनिटी सोशल सर्विसेज फॉर सिंगल मदर, ऐसे सिंपल लिख दो। इतना आसान है ओईटी कि आपको सिर्फ सोशल वर्कर को बताना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फर्स्ट पैराग्राफ आपको मैंने लिख के दिखा दिया था, लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको लिख के दिखा दिया, दोनों ही पर्पस, सिर्फ लास्ट पेज से फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ निकल आते हैं। अब देखते हैं बाकी लेटर। अब पेशेंट को जानते हैं, पेपर में आपको पूरा पढ़ना है पहले, लेकिन ये मैं आपको भी इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए कि मेरा पर्पस तो क्लियर हो ही चुका है लेटर में, क्योंकि पर्पस क्लियर तो आप पक्का पास हो, पर्पस मतलब पक्का पास, 100% पास, और ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी है तो आप पक्का पास। तो इतना सिंपल। लेकिन अब देखते हैं और बेटर क्या कर सकते हैं, तो अब लेटर को थोड़ा और जानते हैं। गेमा ब्राउन, 19 January 1991, you are the charge, you are the nurse in charge of the mental health ward, so you are the nurse over there. Gemma Brown is under your care as she was admitted with severe depression and anxiety due to her recent life circumstance. So she came with severe depression and anxiety क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ रिसेंटली कुछ हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेडिकल हिस्ट्री है, 16 वीक्स प्रेग्नेंट, मेडिकेशंस ये सब लेती है। अब सोशल वर्कर को मेडिकेशन के बारे में बता के क्या करोगे, मत लिखो ना यार, डिस्चार्ज प्लान में दी भी नहीं है कि मेडिकेशन देनी है, तो इस पॉइंट को हटा दो, ये ऐसे ही तंग कर रहा है आपको। तभी तो मैं कहता हूँ ओईटी में वही चुनना है जो आसान है। सोशल हिस्ट्री, लिव्स इन शेयर्ड एकोमोडेशन विद हाउस, तो हाँ अगर हम अपना डिस्चार्ज प्लान देखें तो हमारे में डिस्चार्ज प्लान में एकोमोडेशन की बात है, हाँ एकोमोडेशन की बात है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें इंक्लूड करना है कि वो एकोमोडेशन में 3 अदर फ्रेंड्स के साथ रहती है। अब सब कुछ नहीं लिखना, बस ये रहना है शी लिव्स इन अ शेयर एकोमोडेशन विद 3 अदर फ्रेंड्स, ये लिखने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। पेरेंट्स लिव लोकली बट नो कॉन्टैक्ट, ये भी लिखना है क्योंकि फैमिली सपोर्ट की बात की है, पिछले 6 महीनों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ हर प्रेगनेंसी सिचुएशन, तो ये भी नहीं है, अभी वो 16 वीक्स प्रेग्नेंट है, तो 16 वीक्स का मतलब अराउंड 4 मंथ्स। जब वो अपने पेरेंट्स से पिछले 6 महीनों से बात नहीं कर रही तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता। अवेयर हर पार्टनर इज मैरिड, शी हैड बीन इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप फॉर 10 months दैट रिसेंटली स्टॉप्ड, अवेयर हर पार्टनर इज मैरिड, तो एक रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना होता क्योंकि डिस्चार्ज प्लान में कोई पॉइंट ही नहीं दिया, लेकिन एक सिंगल मदर वाला पॉइंट दिया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा शी वाज इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप बट नाउ दैट रिसेंटली हैज स्टॉप्ड, नहीं तो पूरी लाइन सेम लिख दो, शी हैड बीन इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप फॉर 10 months दैट रिसेंटली स्टॉप्ड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अवेयर दैट, ये रीजन बताने की जरूरत नहीं है, मेन तो ये सोशल वर्कर को ये बताना है कि अब वो अलोन है। सोशल एक्टिव बट नो क्लोज फ्रेंड्स, जब हमारे पास 24th को आई थी, आज डेट क्या है, 25th, 26th सॉरी, लास्ट डेट 26th है, ठीक है, और डिस्चार्ज डेट है 30th, यानी पेशेंट 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट विल बी डिस्चार्ज आफ्टर 4 days, क्योंकि हमारे पास डाटा 26 का है, तो जो आज की डेट लेंगे वो हम 26 में लेंगे। इस लेटर में बहुत कुछ है सीखने को। 26 मई 2018 आज की डेट, एंड पेशेंट विल बी डिस्चार्ज, तो टेंस लगेगा विल बी डिस्चार्ज आफ्टर 4 days, सिंपल हो गया, 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होगा। वैसे भी सोशल वर्कर को एकोमोडेशन ढूंढनी है पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद, आफ्टर डिस्चार्ज, तो मतलब 4 दिन उसके पास है अपने पेशेंट के ढूंढने के लिए। तो हम देखते हैं जब 3 दिन पहले आई थी, 2 days अगो, क्योंकि आज 26 है, 2 days अगो शी वॉज एडमिटेड टू अवर यंग मेंटल हेल्थ वार्ड विद सीवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, तो ये पॉइंट भी दे दिया क्यों आई थी, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Father of the child not willing to recognize child as he already has a family. He ceased all contact after finding out. She does not want the baby. अब ये जान के आपको प्रेजेंट में दे रखा है, she does not want the baby and upset she cannot afford. ये 2 दिन पहले की बात है, तो अगर आप बाय चांस इस पॉइंट को लिखते हो तो आपको लिखना है she did not want the baby and was upset. प्लीज ये बात समझनी है, ये 2 days ago की कहानी है। अब she wanted to die. She refused to get out of bed, cried continuously.
अब सोशल वर्कर को इतनी सारी चीजें बताने की क्या जरूरत है, बस आपको थोड़ी सी कहानी बता देनी चाहिए थी कि अर्लियर शी वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी, बट आफ्टर काउंसलिंग विद साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट शी हैज एक्सेप्टेड द प्रेगनेंसी। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट नहीं बताना, यहीं पे आप अपने वर्ड काउंट को बचाते हो। सोशल, अगर ये साइकेट्रिस्ट को लेटर लिख रहे होते तो आप सारी बात बताते, सर शी वाज नॉट अग्रीइंग, शी वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम। सोशल वर्कर को कहानी पूरी क्यों बतानी है, बस ये बताओ that she wanted she did not want pregnancy. After counseling she has accepted the pregnancy and has thought of keeping the baby. 5 weight gram ये बताने की जरूरत नहीं है। स्टिल रिफ्यूजेस टू कॉन्टेक्ट हर फैमिली, ये बता सकते हो कि अपनी फैमिली से अभी बात नहीं करी, बस ये डाटा है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कस सोशल वर्कर हेल्प, ये बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सोशल वर्कर को ही तो लेटर लिख रहे हैं। तो अगर मैं अब इस लेटर को लिखना चाहूँ तो देखो, अब देखना कितने मिनट लगेंगे। जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो इसके बाद देखना कि आपको लेटर लिखने में कितना टाइम लगता है। अब लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ मैं एक और तरीके से लिख के दिखाऊंगा, जो हमारे लिए फेवरेट तरीका है, क्योंकि वो पूरी कहानी को बता देता है। ये बेटर तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग मिसेस ब्राउन, क्योंकि MS ब्राउन, क्योंकि अब वो मैरिड नहीं है तो इसलिए मैंने MRS में से MR हटा दिया। तो मिसेस ब्राउन who is pregnant, who was admitted to our hospital। अब ये वाला बेस्ट पैटर्न क्यों है, मैं पहले ही पैराग्राफ में आई वांट टू टेल एवरीथिंग टू द एग्जामिनर सो दैट in the next of the paragraphs he will already know that I am a good student, so I want to tell the complete story. This letter is being written who was admitted to our hospital with severe depression and anxiety due to her unexpected pregnancy. This was the reason of admission. After counseling and treatment, she is better. She is better and has, she's better. बस इतना काफी है, she is better. So after counseling and treatment, she is better, so she is being discharged. Again, make it very simple यार, make the story. हमारे पास आई थी, she came with this problem, she is being discharged. Because she is better, so I use the connector so she is being discharged. However, she needs assistance regarding her situation and also and more importantly, ऐसे words भी डाल सकते हो, and मतलब आपको बस अच्छा बनाना है, and more importantly needs an accommodation, needs an accommodation which is suitable for baby, hence she is being referred to you. So जब हमने लेटर शुरू किया था, when we started the letter, तो then I told you a method that आप वैसा लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो। Now आराम से, it will not take time when you know what to write. Mrs. Brown is a single mother and had been in a relationship for 10 months, which that got stopped, yeah, that stopped, that recently has ended, अब end हो गया है after her pregnancy. Yeah, बस that recently has ended. Again, don't make anything complicated. जैसे ही whenever I feel complication, I stop the line then and there only. I do not want to write anything complex. So OET has a simple rule, write in a very simple way. Don't make anything complex, don't give over reasoning. And it is again, it is not about patient you are writing. It is about social worker.